Very good morning, dear students. See, yesterday we have taken the exercises C and B. Yes, exercise B and C. So today we will see the think and the answer. See, yesterday I told you कि in the question answer we have to write it down on the blackboard. So let's start with the question answer. I think you all are done the exercise B and C, and I hope you have written very clearly. Okay, let's start with the question answer, think and answer. Okay, so first question I am reading that how did the poet feel after giving away all the roses. मतलब क्या बोला है कि पोएट क्या फील करता था जब वो पोएट ने सभी गुलाब किसमें दिए, सब में बांटे, है ना। सब में गुलाब बांटने के बाद पोएट क्या फील कर रहा था, दैट इज द आंसर वी हैव टू राइट इट डाउन। ओके, आया समझ में? सो जस्ट बी कॉन्सेंट्रेट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ डिड द पोएट फील। फील मतलब क्या होता है, महसूस करना। हाउ डिड द पोएट फील, प्लीज जस्ट कॉन्सेंट्रेट। फील, द पोएट फील आफ्टर गिविंग अवे, after giving away all the roses. Understood? How did the poet feel after giving away all the roses? मतलब पोएट क्या फील कर रहा था जब उसने सारे रोजेस इसको दी। She has given to all, मतलब सबने उसमें, मतलब पोएट ने क्या, सबको क्या बांटे, गुलाब के फूल। गुलाब के फूल देने के बाद उसे क्या महसूस हो रहा था वो हमें लिखना है। ओके, so the answer is, write it down. See, firstly I have to reading the answer. After giving away all the roses, कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम आंसर, आफ्टर गिविंग अवे ऑल द रोजेस, मतलब सभी फ्लावर देने के बाद। सो वी हैव टू राइट इट डाउन। सी, व्हेन यू स्टार्टेड द आंसर यू शुड write it down the first letter in a capital letter. Always I told you. Okay, so after giving away, आप भी मेरे पीछे पीछे you have to write it down in your textbook. Okay, आप भी लिखते जाओ। Okay, after giving away all the roses, सभी गुलाब देने के बाद, यहाँ पे क्या होगा, कॉमा, वी शुड पुट इन अ कॉमा, रोजेस के बाद। किसको दिया उसने, टू हिज रोजेस, टू हिज सिस्टर। सी, हिज क्यों लिखा है, अगर पोएट इफ a girl, तो we have to write it down her। अगर वो poet, because still we are confused, the poet exactly means वो क्या है, poet मतलब कवि है या कवित्री है ना, girl है, boy है। so अगर poet male है तो we should write down his, अगर female है तो हम क्या लिखेंगे, her। okay, so his sister, हमने पढ़ा था कि वो एक फ्लावर किसको देती है, उसके सिस्टर को। सो आफ्टर गिविंग अवे ऑल द रोजेस टू हिज सिस्टर एंड फ्रेंड्स। सी, आफ्टर गिविंग वन रोजेस टू हिज सिस्टर एंड हिज फ्रेंड्स, F R
FRIEND, friends. Why here have to write down yes? Because so many friends there. Friends, he means who? It's a poet. He was profoundly, मतलब बहुत ही उत्सुकता से खुश है, profoundly happy, मतलब अंदर से बहुत ही ज्यादा खुश, profoundly happy, besides, उसके बावजूद भी, besides means उसके बावजूद भी, besides he left, who left? Poet. He left that these flowers, आप लिखो, फिर उसके बाद मैं आपको I will tell you the exact meaning of this answer. Okay, so that these flower would help them, मतलब सभी को क्या कर रहे थे, वो फुल हेल्प कर रहे थे, for help them to out overcome their sorrow means क्या होता है, दुख, sorrows and move on in their lives. Finish. See, please just look at on the blackboard. See, what is the exact question they have given to us? How did the poet feel after giving away all the roses? पोएट ने सभी रोजेस देने के बाद एक्चुअली व्हाट ही फेल्ट, वो क्या महसूस कर रहा था, मतलब खुशी महसूस कर रहा था, रिलैक्स महसूस कर रहा था, दुख महसूस कर रहा था, ठीक है, इट इज अ क्वेश्चन मार्क. सी व्हाट आई हैव राइट इट डाउन, आफ्टर गिविंग, कहां से हमको स्टार्ट करना है, यहां से है ना, कि फूल देने के बाद, सो ऑब्वियसली व्हेन वी स्टार्टेड द आंसर वी शुड पुट फर्स्ट लेटर इन अ कैपिटल. सी हियर द स्मॉल लेटर. When we started, the first letter should be in a capital letter. See, A is a capital letter. After giving away all the roses, यहाँ तक देखो, after giving away all the roses, मतलब सभी roses देने के बाद किसको किसको दिया? To his sister and his friend. मतलब the poet given one roses to his sister because she is very beloved and very dear to him. Okay, and to his friends, है ना, मतलब एक फ्रेंड, मतलब सिस्टर, सिस्टर को देने के बाद आफ्टर he has given to his friends, he was profoundly happy, मतलब वो खुशी, मतलब उसको बहुत ज्यादा खुशी, इतनी मतलब बोलते हैं ना इंटरनली खुशी. See, he was profoundly happy. Besides means उसके बावजूद भी, he left that this flower would help them to overcome. मतलब देखो, अगर आप if you are feeling in a sad moment, अगर आप कोई भी sad moment में है, अगर मैं आपको कुछ देती हूँ, see
a flower, तो आप क्या होते हैं, you just come out your sorrow, मतलब आप अपने दुख से क्या आ रहे हो, बाहर आ रहे हो, है ना। तो उसी तरह से मतलब एग्जैक्टली पोएट को खुशी कब हो रही है, जब वो सबको रोजेस देता है। इफ समवन इज हैप्पी, समवन इज सॉरो, समवन इज सैड, किसी को बढ़ावा देने के लिए, किसी को चीयर अप करने के लिए, सबको मतलब फ्लावर्स देने के लिए, ऑब्वियसली ही फील्स सो हैप्पी, मतलब उसको बहुत ज्यादा खुशी होती है। क्यों खुशी होती है, क्योंकि वो जो फ्लावर्स है, दिस फ्लावर, जो भी बचे हुए फ्लावर्स है, वो फ्लावर्स उनको क्या कर रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं। क्यों हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि वो आउट टू ओवरकम देयर सॉरो, मतलब उनके जो दुख है वो बाहर आ रहे हैं। एंड मूव ऑन इन देयर लीव्स, मतलब वो मतलब क्या बोल रहे हैं, वो उनको जो रह रहे हैं, उनके सॉरो क्या कर रहे हैं, वो बाहर ला रहे हैं, मतलब उनका दुख बाहर आ रहा है। और उनके जो लाइफ है, ऑन देयर लीव्स, उनकी जो लाइफ है वहां पे वो क्या कर रहे हैं, जस्ट मूव ऑन कर रहे हैं। सी द पोएट्स वन फ्रेंड हु हैज बीन स्ट्रगल इन हिज करियर या इन हिज लाइफ, वो क्या कर रहा था, बहुत स्ट्रगल कर रहा था। सो तो ऑब्वियसली दैट फ्रेंड द पोएट्स हैज गिवन अ वन रोजेस, है ना, एक फूल उसने दिया था। क्यों, ताकि वो चीयर अप करे और जो भी उसका स्ट्रगल है उसमें वो मदद हो। सो ऐसे बोला है। सो जस्ट प्लीज राइट इट डाउन द आंसर once again. I am reading. See, after giving away all the roses to his sister and his friends, he was profoundly happy. Profoundly, P-R-O-F-O-U-N-D-L-Y, profoundly happy. Beside, उसके बावजूद उसके पास वो फूल रहते हैं, he left that these flowers would help them, मतलब help them किसको आ रही है, them किसको आ रहा है, उसके फ्रेंड्स को, to out overcome, मतलब उनके sorrow, sorrow मीन्स क्या होता है, दुख, sadness, जो भी उनकी मतलब दुख रहता है ना, sorrow मीन्स क्या होता है, दुख, हम बोलते हैं ना sad, like sad, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, their sorrow and move on in their lives, उनके जो भी दुख है वो क्या कर रहे हैं, कम करने के लिए। तो ऑब्वियसली ये जब सब सारे प्रॉब्लम्स हैं, मैं किसी को फूल दूंगी और उसके बदले जो मुझे वो खुशी मिल रही है कि आफ्टर गिविंग द रोजेस द पर्सन, द फ्रेंड्स, द सिस्टर सी द बिग स्माइल ऑन हर फेस, ऑन हिज फ्रेंड्स फेस। ओके, समझ में आ रहा है। सो दिस इज द आंसर। Come on, write it down the answer. After that, we will see the question number B. Okay. So, which word will you choose to describe the action of the poet? उन्होंने क्या बोला है? See, we have they have given 3 options also. First is a hasty and generous and show off. मतलब वो क्या बोल रहे हैं, मतलब एक जनरस मतलब दे रहे वो, या हैस्टी मतलब एक रैश बोलते हैं ना वो, और शो ऑफ, शो ऑफ के लिए मतलब ऐसे शो ऑफ है, चल ले ले ले, ऐसा नहीं बोलते कि हाँ चल दे दे, मतलब उसको शो ऑफ दिखाने के लिए, अपना कुछ दिखाने के लिए बोलते हैं वैसे शो ऑफ। तो हमको ये पता करना है कि इन तीनों में से जो पोएट के बारे में डिस्क्राइब, वर्णन किया गया है, तो इन तीनों में से व्हाट इज द एग्जैक्ट वर्ड सूट्स ऑन द पोएट। अंडरस्टूड? सो आई होप यू हैड रिटन the answer. So answer is the question number of B. It's the answer should, we will go with the B. It's a general, सबके साथ जनरस था, सबको मतलब वो खुशी से दे रहा था, उसका मेल मिलाप था, है ना। सो आपको आंसर लिखना है क्वेश्चन नंबर B का, it's B. क्वेश्चन नंबर B का आंसर इट्स a B. ओके, यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि those who have not written down till yet they have given to a time. Okay, so क्वेश्चन नंबर B का आंसर है, क्वेश्चन नंबर B का आंसर इट्स B, है ना। What is the answer? G E N E R O U S, generous.
ठीक है, आगे आपको समझ में? ओके, लेट्स मूव ऑन, लेट्स लर्न ग्रामर। सी वहां पे क्या दिया हमको, ग्रामर को एक बार फिर से और क्या करना है, लर्न करना है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, अगेन द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। द पर्सन, प्लेस और अ थिंग स्पोकन अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। सी क्या बोला है यहाँ पे, ऑलरेडी in a grammar portion already we have seen what is the subject and what is the predicate. Again let's revise the subject and predicate. See क्या बोला है, the person, एक particular व्यक्ति, कोई जगह और कोई प्लेस के बारे में जो हमको बोला जाता है या जो बोला गया है, हाँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इट्स अ सब्जेक्ट। अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और कोई भी वस्तु मीन्स थिंग्स, इसके बारे में जहाँ पे जिक्र होता है, जिसके बारे में बोला जाता है, वी शुड कॉल द सब्जेक्ट। ओके, देन सेम द इट्स टू व्हाट इज द प्रेडिकेट, है ना। प्रेडिकेट को क्या बोलना है, व्हाट इज द सेड अबाउट सब्जेक्ट, मतलब हमको सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, मतलब एक नाम के बारे में बताया जाए, विषय के बारे में बताए कि क्या सब्जेक्ट है, तो हमको व्हाट इज द सेड अबाउट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में हमको क्या बोलना है, क्या मतलब क्या बोल सकते हैं वो, उसको ही हमको प्रेडिकेट बोला है। आया समझ में, व्हाट इज द सब्जेक्ट। प्लीज जस्ट रिमेंबर सब्जेक्ट, द सेंटेंस शुड बी इन अ प्लेस, थिंग एंड व्हाट द पर्सन, जहां पे भी ये रहेंगे हमको क्या करना है उसको, that is a subject and predicate it's fully depends upon the what subject, मतलब हमको सब्जेक्ट के बारे में बोला गया उसको ही हम क्या बोलेंगे, it's a predicate. See then the in the next period we will see the exercise B, है ना। आज क्यों, क्योंकि आज हमको ये जो है ये हमको अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से राइट करना है। You should write it on the with a good handwriting. Please don't mistake when you write the spellings. Okay, so tomorrow we will take the exercise B. Okay, so students, see you tomorrow. Till then, take care. Bye bye.